हेलो इंसानों जानवरों और आत्माओं वेलकम टू किस्मत ग्राउंड टुडे आई would like to introduce our very special guest Dr. Mahendranath. He is a well-known Vedic astrologer and Vastu Reiki and Nadi astro expert, founder chairman of Avaduta Global Foundation Karnataka. He is honorable director of Lipakshi UNESCO World Heritage Site. Hi all. Hi Nazim. Thank Hello you sir. for introducing me on the show. So I've heard that you went to UK. Yeah. That is pretty cool. And then you came into the line of astrology. That is even cooler. How did the transition happen? Actually, the transition happened way back in 1990s. In the year 1992, I took my Diksha in astrology. Personally, I have three gurus who have transformed my life in greater way. One of the gurus ended telling me that I'll be a homeopathic doctor 17 years before me getting into the studies. That was a miracle for me. And while I was serving in UK when I was doing my routine work, I thought that maybe I am born for something else. So astrology drew me. Then I took it up very seriously as a career. And today I am in such a position where many politicians, many bureaucrats, many successful persons, and even film stars consult me for their problems in life and career, especially for the growth aspect. Recently, the Union Minister H.D. Kumaraswamy, the former Chief Minister of Karnataka and the son of former Prime Minister of India, consulted me. And I remember that I predicted that his son, Nikhil Kumaraswamy, will have a boy baby. It came true. The person who introduced him to me is also a great personality. He is a bureaucrat. After the prediction came true, on my birthday, I remember last year, they gifted me a BMW 5 Series car. Wow, that's crazy. So, astrology has done so many miracles in my life, personally. And the main thing is the belief. Belief is the word. If you believe anything, it manifests. So, this is the reason I have ended up in astrology. So, how did astrology change your personal life growing up? Astrology changed my personal life in many aspects. How I live, how I dress, what rituals I do, what I wear, my personal merchandise, my gadgets, my watch, my personal phone number, my bank account. All these things, if you see, some or the other aspect is governed by astrology only. Today I am wearing a white garb. Today is Friday. Friday is ruled by Shukra, Venus. Okay. And I am into Mars Dasha. Mars is red. See what I am wearing. Red and white. I am into podcast. So all these subtle aspects have changed my life. I do meditate a lot. Not for my personal things. I meditate whole for a world peace. Wow. That should be done. And in each Indian scripture, if you see, Ganesh is worshipped first in India, especially in Hinduism, Sanatan Dharma. He is also called as Adi Pujita. Adi Pujita means the one who is been worshipped first.
And if you see the mantra itself, it tells Gam Ganapataye Namaha, means take away all the suffering. So now let's move on to our next section, which will be horoscope questions. तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए सोना पहनना भाग्यशाली नहीं है, मतलब वो कोई और धातु पहन सकते हैं besides gold? First and foremost is Taurus, Vrishab Rashi. Because वृषभ में वीनस कंबस्टन हो जाता है. जब वीनस कंबस्टन हो जाता है, आई हैव सीन 90% of Vrishab ladies, especially, I should not say this on podcast, but unfortunately, if they wear more than 250 grams of gold on their body, they'll end up being widows. This is what gold can do for them. Because Venus is the governing planet of the gold and also sun. जब सन एंड वीनस दोनों मुखामुखी हो जाते हैं तभी कंबस्टन बन जाता है, मेलेफिक बन जाते हैं. तो ऐसा प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं. एंड इवन एक्वेरियस, कुंभ राशि, उसका गवर्निंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न. जब 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 सूर्य उनके हॉरोस्कोप में अच्छे घर में बैठा रहता है तभी अच्छा रहता है. तभी मानिए सेकंड हाउस, फाइनेंशियल हाउस में, नहीं तो सिक्स्थ हाउस, छठा घर में, रोग ऋण और शत्रु का घर में, और 12th हाउस कर्म स्थान में बैठ गए तो दे विल ऑल्सो एंड अप बीइंग विडोस. सो मेरी प्रार्थना है सभी बहन लोगों के लिए, इफ यू आर ए टॉरस जोडियाक और Aquarius, कुंभ राशि, beware of wearing gold. Platinum is very good for you. You have other options as well. Silver is very good for you. Because platinum is more costly than gold also. So that will be the better option. So these two zodiacs, according to me and astrology, Vedic astrology, should not wear gold. There is a gemstone associated with every zodiac sign. So is there a gemstone जो हर एक राशि के लोग पहन सकते हैं, उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा? 100% ऐसा एक जमस्टोन है. ऐसा जमस्टोन को अभी तक किसी भी मीडिया में बताया नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताता भी नहीं, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट रहता है ना. व्हाइट टोपाज है, एक जेमस्टोन है, कोई जोडियाक पहन सकता है. और सोने की दिशा में साउथ वेस्ट जोन में किधर मास्टर बेडरूम रहता है, उधर कैलीग्राफी अगेट करके एक स्टोन है, उसका पिरामिड बना के जो ही सोता है उस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में लेट के, वो करोड़पति बन जाता है. ये तो तय है. सो व्हाइट टोपाज इज एवरीवन्स जेमस्टोन. So आपके हिसाब से which zodiac sign is more connected to consciousness and which is like the most spiritual? ओके, हर कोई जोडियाक कॉन्शियस का रहता है, लेकिन आई विल गिव यू द क्लासिकल एग्जांपल्स. इफ यू सी रामायण, we have so many different personalities in it. We have Bhagwan Ram, who is conscious himself because he is Vishnu avatar. He is born in Punarvasu nakshatra. So Punarvasu nakshatra का कोई जोडियाक रहता है, किसी का रहता है, वो बहुत कॉन्शियस रहता है. उसका सबकॉन्शियस माइंड और मणिपूरक चक्र जब उसका बर्थ होता है तभी एक्टिवेट होता है. उसका स्पेशल साधना की जरूरत ही नहीं है. सेकेंडली,
रावण आपको पता है, डेमन गॉड हु रूल्ड दी श्रीलंका. ही वॉज द महान शिव भक्त. शिव तांडव स्तोत्र आप सुना रहते हैं, हाँ जी. यूट्यूब में बहुत फेमस. वो उसी ने लिखा है. माना जाता है कि रावण के अलावा फॉर द नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस उतना बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हो सकता. ही वॉज बॉर्न इन तुला राशि, लिब्रा, चित्रा नक्षत्र. सो चित्रा नक्षत्र किस किस का होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उस एस्ट्रोलॉजर का चित्रा नक्षत्र है और तुला राशि है. आपका पत्रिका में, जन्म पत्रिका में कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकता है. ये 100% तय है. और लियो, लियो का मका नक्षत्र रहना है. मका नक्षत्र इज रूल्ड बाय पितृस. ऐसा बंदों को सुपर नेचुरल अनुभव, मिराकल्स, ये सभी अनुभव ज्यादा होते रहता है, क्योंकि उनका गवर्निंग प्लैनेट सूर्य है. और सिंह राशि में कौन कौन पैदा होता है, तभी उनका केतु दशा चलता है. केतु कौन है? केतु सुपर नेचुरल प्लैनेट है, हु कैन डू मिराकल्स. सो ये 3 नक्षत्र, चित्रा, पुनर्वसु, मखा, बहुत कॉन्शियस में रहता है. सुपर कॉन्शियस का नक्षत्र भी एक है, वो श्री कृष्ण परमात्मा का है, रोहिणी नक्षत्र. ये सभी कॉन्शियस का सुपर लेवल्स. So, according to you, which zodiac signs are most attractive? Most attractive zodiac signs are Virgos and Gemini, because their Venus is very strong. If you see their horoscope, most of the times Venus or Sun will be posited in the 11th house, which gives them the charm what others feel they don't have. Apart from this, Leoids, Pisces, Aquarius have charm, natural charm in them. So शुक्र को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टिप्स है अदर जोडियाक्स के लिए. अट्रैक्टिव कोई भी बन सकता है. आप शुक्र को स्ट्रांग बनाने के लिए जब आप नहाते हैं ना, थोड़ा कच्चा दूध मिला के डेली नहाइए, अपने आप शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा. और एक टिप है, फुल मून के दिन रहता है, पूर्णिमा के दिन, आप थोड़ा केसर और दूध दोनों मिला के रात में 11 बजे 11 मिनट पीने को स्टार्ट कीजिए. इट क्रिएट्स ए यूनिवर्सल अट्रैक्शन. So, like you said, रात के 11:11 पे वो इतना स्ट्रॉन्ग टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, अपनी विशेस को सच करने के लिए क्यों माना जाता है? क्योंकि वी हैव 4 डायरेक्शंस जनरली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. वन इज सन्स नंबर, सूर्य का नंबर होता है. 11:11 को साइंटिफिकली क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में सन का एनर्जी पॉजिटिवली स्प्रेड होके रहता है. उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ब्राह्मी मुहूर्त. सो 12 to 3 से आपका सनराइज स्टार्ट हो जाता है 6:25 तक. सो दैट इज द रीजन. इट्स ए यूनिवर्सल लकी टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग. सो मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या करना है, आपका इष्ट देवता कोई भी रहता है, स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है. आप कुछ पत्र, पुष्प या फल या वाटर, सेल्फलेसली आप उसको भोग चढ़ाइए, तभी क्या भी मैनिफेस्ट हो सकता है. आपका विशेष सभी मैनिफेस्ट हो सकता है. इसलिए 11:11 मोस्ट लकी टाइम माना जाता है, दिन में भी.
कौन से ऐसे राशि के लोग हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? Virgo should avoid Scorpios क्योंकि उनका शनि, राहु और केतु खराब रहता है, झगड़ने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है. लियोस शुड ऑलवेज अवॉइड टॉरस. सिंह राशि, वृषभ राशि को अवॉइड करना है, वो भी झगड़ते हैं. और कैप्रिकॉन मस्ट अवॉइड एक्वेरियस, वो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. ये तीनों एस्ट्रोलॉजी में भी माना गया है और जनरली भी बोलते हैं टू अवॉइड, क्योंकि देर इज वन एस्पेक्ट इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड एज गण. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गण. वन इज राक्षस, वन इज मनुष्य, वन इज देव. So these three combinations, ना, usually they tell देव और मनुष्य मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य और राक्षस नहीं करना चाहिए. दो लोग में एक लोग मर जाएगा. सुसाइड्स क्यों होते हैं? ऐसा मेलेफिक कॉम्बिनेशन से होता है. So people born in what month are most likely to get extremely successful in business? See, the most successful businessmen are born in April. अंबानी को देखिए, रतन टाटा को देखिए, मार्क जुकरबर्ग को देखिए. You can choose any one of them, but to be more successful in business or politics or any line, marketing or media, सन को स्ट्रांग करना है, सूर्य को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा. तो कैसा करें? मैं एक उपाय बताता हूं आपको. डेली गेट अप बिफोर सनराइज. दिस इज द फर्स्ट सक्सेस फॉर्मूला फॉर एनीवन, फॉर ऑल zodiacs. Get up before sunrise. Touch the feet of your parents. If you are staying in your home, if you are accessible to your parents, touch their feet. ऑटोमेटिकली आपका सूर्य और चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा. मदर इज चंद्र, फादर इज सूर्य भगवान. जब सूर्य और चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी प्लैनेट, 7 प्लैनेट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, है ना. सो आफ्टर यू गेट अप बिफोर सनराइज, एग्जैक्टली एट 6:25 सनराइज स्टार्ट होता है, स्पेशली इन इंडिया. 1 or 2 मिनट्स ऐसा वैसा रहता है. 6:25 तो तय है. आप एक तांबे का पॉट लीजिए, कॉपर का, उसमें जल भर दीजिए, थोड़ा सैफरन उसमें भर दीजिए, रेड या येलो कलर फ्लावर्स भर के एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट स्टैंड हो जाइए. ईशान्य करते हैं, ईशान्य बोलते हैं उसको. नॉर्थ ईस्ट में स्टैंड होके आपका टेरेस में चला जाइए. एक बकेट आपके सामने रख के सूर्य को ओम सूर्याय नमः करके ये मंत्र बोल के जल चढ़ाए. आपका करियर सक्सेसफुल हो जाएगा, रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका हेल्थ सक्सेसफुल हो जाएगा. कुछ ना कुछ झगड़ा, पॉलिटिक्स, बिजनेस में, नहीं तो ऑफिस में, वो सभी आपका ठीक हो जाएगा. मेनली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लाइफ में ये करने से. तो सन को आप बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए. तो बहुत सारे लोग हैं, वो अपने घर से दूर किसी और शहर में काम से रहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं होते उनके पैर छूने के लिए. तो वो कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे वो उन्हें भी सक्सेस मिले अपने करियर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर? जो लोग पेरेंट्स से दूर रहते हैं उनका फोटो को नमस्कार कीजिए, ये सटीक उपाय है. और आप नीम का पेड़ को नमस्कार कर सकते हैं, नहीं तो पीपल का पेड़ को नमस्कार कर सकते हैं.
ये दोनों करने से इक्वल ब्लेसिंग सबको मिल जाएगा। सो बहुत बार वर्क प्लेसेस एंड घरों के अंदर एक नेगेटिव ऑरा या एनर्जी रहती है, कई लोगों ने महसूस की है। तो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट? Okay. See, basically, first negative things comes from us only. How 90% you see, most of the people tell lies daily, subconsciously and consciously also. To avoid certain circumstances, झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ बोल बोल के क्या हो जाता है, घर में एक देवी रहता है, दरिद्र देवता बोलते हैं उसको, वो स्ट्रांग हो जाती है। जब वो स्ट्रांग हो जाती है, राहु घर में एंटर हो जाएगा। सो व्हाट इज द रूट कॉज? झूठ बोलना पहला रूट कॉज हो गया, राहु घर में एंटर हो गया। राहु घर में एंटर कैसा होता है? कोई चीज रस्ट को पकड़ के है, वो साक्षात राहु है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका घर में कुछ ना कुछ वेट बैठा है, उधर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहता है। और किचन में, रसोई घर में कॉकरोचेस दिखने लगे, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उस घर में है। और अनयूज्ड क्लोथ्स, और आपका चप्पल, सभी चप्पल का स्टैंड रहता है, घर के बाहर रहता है, घर के अंदर भी रहता है। किसी का शूज के ऊपर थोड़ा धूल मट्टी बैठा है तो उस घर में केतु का भी वास हो गया। जब राहु और केतु एंटर हो गया तो क्या हुआ? काल सर्प दोष बन गया, बिजनेस कोलैप्स, कर्जा, लोन्स, हेल्थ खराब, मूड खराब, फ्रेंडशिप खराब, सब कुछ खराब। तो क्या करना है? एक पिन भी ना रहना है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्लटर फ्री, रोज का इत्र डेली चढ़ाना पड़ेगा उधर। और साउथ ईस्ट कॉर्नर में कुबेर स्थान बोलते हैं, उधर मैक्सिमम वेट रखना है। बहुत पॉजिटिविटी आना है तो एटलीस्ट 2 किलो सैंडलवुड परचेस कीजिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख लीजिए। आपका बिजनेस टॉप, चार्म टॉप, स्पीच टॉप, कैरियर टॉप, सब कुछ टॉप। सो हमारे काफी व्यूअर्स को जिनकी एज कम है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि राहु क्या होता है। तो आप क्या थोड़ी सी सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि राहु क्या है? Okay, there is a legendary story. First, let's learn what it is. So many astrologers बोलते हैं राहु एक शैडो प्लैनेट है, उसका सिर नहीं है, वो ग्रह ही नहीं है, वो कंसिडर नहीं करना चाहिए। राहु सिर्फ टॉयलेट क्लीन करने से आपका ठीक हो जाएगा। घटागर टॉयलेट है, टॉयलेट में नील वार के फ्लश करने से राहु ठीक हो जाएगा। ये सभी बहुत लोग इंटरनेट में बोल के रहते हैं, लेकिन मैं इंडियन स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म में आधार के साथ बोलता हूं। अभी एक स्टोरी आपको। जब समुद्र मंथन हुआ था, तभी स्वर्ण भानु करके एक डेमन गॉड था, राक्षस, वो जाके अमृत पी लिया। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी सिर्फ सुर पीना है, मीन्स देव, ओनली द गॉड्स हैव टू ड्रिंक द अमृत। अभी क्या हुआ? डेमन पी लिया, सो क्या हुआ? उसको इमोर्टैलिटी मिल गई, अमर बन गया, चिरंजीवी बन गया। ये विष्णु भगवान को पता हो गया। विष्णु भगवान क्रोध में आए और क्या किए? उनका सुदर्शन चक्र उसके ऊपर प्रयोग हुआ। उस डेमन का 2 पीसेस हुए। वो 2 पीसेस में फर्स्ट पीस राहु बन गया, सेकंड पीस केतु बन गया। जब उसका टाइम हुआ, जिस टाइम में वो कट हुआ, उसी को बोलते हैं राहु काल। ठीक है? सो इन वैदिक स्क्रिप्चर्स
राहु को क्या बोले है कि अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम त्वम राहुम प्रणमामि हम करके बोले. अर्धकायम मीन्स राहु डजंट हैव हेड. Whenever Rahu is malefic in your horoscope, person tends to murder someone. उनका ब्रेन ही खराब हो जाता है. क्लासिकल एग्जांपल ओसामा बिन लादेन. राहु उसका बहुत खराब था. क्या कर दिया उन्हें? मर्डर्स किए बहुत सारे. मर्डर्स किए, टेररिज्म किया, ग्लोबल टेररिज्म, ये सभी राहु कर सकता है. जब केतु खराब हो जाता है, घर का सदस्य को ही मर्डर कर देता. यू हैव सीन सो मेनी केसेस. ब्रदर किलिंग सिस्टर, सिस्टर किलिंग ब्रदर, सन किलिंग मदर, सन किलिंग फादर, ये सभी केतु कर सकता है. ये दोनों ठीक होने के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, there is a unique temple for Rahu and Ketu in India, and it is not present elsewhere in the world. वो किधर है? बैंगलोर से 300 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में कालाहस्ती करके एक टेम्पल है. वो साक्षात राहु का स्थान है और साक्षात केतु का स्थान है. उधर एनुअली मोर देन 50 लाख पीपल, इफ यू बिलीव मी और नॉट, राहु और केतु को पूजा करके आते हैं और जीवन में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं. उधर का शिवलिंग साक्षात राहु है, उधर का पार्वती देवी साक्षात केतु है. शिवलिंग के ऊपर यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, जो ब्राह्मण लोग डालता है ना, थ्रेड, उसको बोलते हैं राहु. और उधर पार्वती देवी का नाभि में एक सिल्वर का नाग है, वही साक्षात केतु. आप किसी भी दिन उधर जाइए, स्पेशली ट्यूसडेज आर वेरी गुड, संडेज आर वेरी गुड एंड मंडेज आर वेरी गुड. जब आरिद्रा नक्षत्र आता है, उस कॉम्बिनेशंस में उधर जाके राहु और केतु का पूजा करके आइए. मैं आपको 1000% बताता हूं, लाइफ में आपको राहु और केतु का प्रॉब्लम इश्यूज सॉल्व हो जाए, क्योंकि साक्षात उधर राहु और केतु का आवास है. और एक मिराकल है उस टेम्पल में. एक्लिप्स में अगर देखा तो सारा टेम्पल्स बंद होता है ना, लेकिन वही वो स्थान है जब एक्लिप्स भी रहता तो भी वो टेम्पल ओपन ही रहता है. बाय दैट यू कैन कम टू नो द पावर ऑफ द लॉर्ड देयर. एक्लिप्स भी उसको नहीं पकड़ता. व्हाट इज एक्लिप्स? एक्लिप्स इज नथिंग बट राहु एंड केतु. सो यही सटीक उपाय है. और आप क्या कर सकते हैं, जिन लोग कालाहस्ती नहीं जा सकते, बहुत दूर है, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, क्या क्या करना, एक छोटा सा शिवलिंग अमेजोन से मंगवा दे, किधर भी से मंगवा दे, छोटा सा शिवलिंग आपके घर के पूजा स्थान में उसको स्थापन करो. आलमंड ऑयल ले लो, एवरी मंडे शिवलिंग पे चढ़ाओ. नॉट ओनली राहु एंड केतु, ऑल द 9 प्लैनेट्स, ग्रहों का शांति होना तय. जो फोर्थ हाउस होता है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी और मदर का है. उसका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है. चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत सटीक उपाय शिव पुराण में दिया गया. चंद्रमा को पूर्णिमा के रोज आप एक शिव जी का, भगवान का मंदिर में जाइए और आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए थोड़ा जल चढ़ाइए, बादाम का तेल चढ़ाइए और कच्चा दूध चढ़ाइए. चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा. और स्पेशली गर्ल्स,
who have reached puberty, they have to wear moonstone because हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहता है. मूनस्टोन बहुत अच्छा काम करता है. और चंद्रमा को ठीक करने के लिए और एक उपाय है, नाइट में दूध पीना मना है. और पानी को सिल्वर कप या सिल्वर ग्लास में पीने से आपका चंद्र 1000% ठीक हो जाएगा. ऐसा फोर्थ हाउस को ठीक कर सकते हैं. घर पे वास्तु के लिए कौन से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो करें? घर में वास्तु के लिए बहुत प्लांट्स बोला जाता है, लेकिन मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ सटीक उपाय है. उसमें 5 तुलसी का प्रयोग बताया गया है. एक हुआ कृष्ण तुलसी, एक हुआ राम तुलसी, एक हुआ वन तुलसी, एक हुआ कपूर तुलसी और लास्ट वन मरुआ तुलसी. नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये 5 तुलसियों को रखने से घर का पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा, फादर का हेल्थ ठीक हो जाएगा, मदर का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा. और जिन जिन का घर में कर्ज ज्यादा है वो लोग इन 5 तुलसी का पॉट्स किधर रहता है, तांबे का लोटा लेके उससे जल चढ़ाने से कर्ज उतरना लगेगा. तो गुरुजी, नजर उतारने का कोई बहुत अच्छा मेथड, फूल प्रूफ मेथड बता दीजिए. ओके, पहले नजर क्यों उतारना है वो बोल दूंगा, नजर कैसा चढ़ता है वो भी बोल दूंगा. नजर मतलब इविल आई, सबको पता है. नजर सिर्फ लोग देखने से नहीं हमारे ऊपर चढ़ता है. आप देखिए, चौरास्ता रहता है, नहीं तो 3 रोड्स कनेक्ट करके होता है. आपको लेमन्स दिखता है रोड्स पे, और रेड चिल्लीज दिखता है, और टर्मरिक वाटर भी दिखता है, वर्मिलियन वाटर दिख सकता है, नेल्स दिख सकता है, लेमन दिख सकता है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. इंडियन कल्चर में आप छोटे छोटे शॉप्स को देखे होंगे, उनका कैश बॉक्स के पीछे एक कांच का ग्लास के अंदर थोड़ा पानी डाल के नींबू रख के रहते हैं, वो भी आप देखे रहते हैं. ये सभी हमारा कस्टम्स में बहुत पुरातन काल से आए हैं. अगर हम वैसा चौरास्ता में जाते समय किसी नींबू या रेड चिली या नेल्स या वैसा टोना टोटके का जल को हम पाद स्पर्श कर लिया, हमको वो नजर चढ़ जाएगा. कोई उतरा हुआ नजर हम पर चढ़ जाएगा. तभी हमको क्या महसूस होता है, हील्स में पेन स्टार्ट होता है, लाइट हेडेक स्टार्ट होता है, यॉर्निंग स्टार्ट होता है. जब भी तुम यॉर्न कर रहे हो समझो तेरा ऊपर 20% नजर चढ़ गया. यॉर्निंग इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ नजर. सेकेंड सिम्टम, आपका अपेटाइट बहुत अच्छा रहता है, मानो आप 5 इडली खा लोगी सुबह सुबह उठ के, आपको एक भी इडली खाने का मन नहीं कर रहा है, आपके ऊपर नजर चढ़ गया. मानो आपका हेयर्स बहुत अच्छा है, सडनली हेयर फॉल होने को स्टार्ट हो गया, आपके ऊपर नजर चढ़ गया. मानो आपके घर में सडनली ग्लास ब्रेक हो गया, मिरर्स ब्रेक हो गया, वॉच स्टॉप हो गया, जूते थेफ्ट हो गया, नहीं तो कुत्ता मर गया, फिशेस मर गए फिश टैंक में. ये सभी नजर का सिम्टम्स है. सडनली न्यू बॉर्न बेबीज को फीवर पकड़ना, निमोनिया बन जाना, नहीं तो चिल्लाहट करना, चिड़चिड़ापन करना, ये सभी नजर का एक सिम्टम्स हो गए. सिम्टम्स होगा.
सो नजर उतारने का सटीक उपाय आपको फिटकरी पता है। एक 10 रुपए का फिटकरी लीजिए, अलम क्रिस्टल। उसको आप ट्यूसडेज लेकर आना है मॉर्निंग को। नजर डेली नहीं उतारने का, अमावस्या, पौर्णमी और ट्यूसडेज बहुत अच्छा उतारता है। पहला उपाय, एक फिटकरी लीजिए, फिटकरी को दोनों हाथ में पकड़िए। दोनों हाथ में पकड़ के आपके इष्ट देवता को प्रार्थना करके किसी और को, कोई बुजुर्ग रहता है, मदर रहता है, फादर रहता है, ब्रदर रहता है, सिस्टर रहता है, उनको उतारने के लिए दे दीजिए। दे के सिर से टोस तक उसको 3 टाइम्स टच करके घर के बाहर जाना है, चौरास्ता में, नहीं तो आपके घर के सटीक रोड किस डायरेक्शन में एंड होता है उधर जाना है। क्लैरिफाइड कैम्फर करके आता है, क्लैरिफाइड कैम्फर के ऊपर ये फिटकरी रख के जला देना है। मुड़ के ना देखना है, आ जाना है। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, ट्रेडिशनल इंडियन नजर उतारने का उपाय। एल्यूमिनियम प्लेट लेना है, न्यूट्रल रहता है, उसमें थोड़ा जल डालना है, थोड़ा कुमकुम और थोड़ा हल्दी डाल के 5 रेड चिलीज लेना है। रेड चिलीज को उसमें डाल के थोड़ा चूना लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो पान में यूज करते हैं, वो डालना है। वो डाल के उसमें कपूर जला के सिराने से पाँव तक उतारना है। उतार के 3 लाइन्स के डाल के आना है रोड में, 3 लाइन फॉर्मेशंस में डाल के आना है। ऐसा भी आपका नजर उतर जाएगा। तीसरा उपाय, ये बहुत स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ तंत्र मंत्र और तंत्र टोने टोटके में ये लिखा है। एलिफेंट डंग रहता है, एलिफेंट डंग नजर उतारने में बहुत फायदेमंद है। मानो आपको एलिफेंट डंग का एक्सेस मिल गया, दोनों पैर उस पे रखने से 100 ईयर्स का नजर उतर जाएगा, उतना पावरफुल है तो एलिफेंट डंग। तो कह सकते हैं पूरे जनरेशन का और ही। पूरा जनरेशन का नजर उतर जाएगा, पूरा जनरेशन का क्या नेगेटिविटी है वो उतर जाएगा। और एक उपाय मैं बताता हूँ। ग्रेप जूस रहता है ना, रेड रेड ग्रेप जूस, अरेबियन ग्रेप बोलते हैं, उसको आप लेकर आइए। आप ही जूस निकालिए, उसमें थोड़ा शहद और शक्कर डालिए। शक्कर डाल के शिवलिंग के ऊपर रात के समय, जब टेम्पल क्लोज होके रहता है, नहीं तो टेम्पल क्लोज होने वाला है, उस समय शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाने से किसी भी तरह का बुरा नजर आपसे उतर जाएगा। ये 100% थे। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, जो आज की जनरेशन है वो बहुत वेस्टर्नाइज हो चुकी है। वो अपनी रूट से इतनी कनेक्टेड नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग आ चुका है, इसलिए हम एक एंड की तरफ जा रहे हैं, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। हम्म, तो आप अपने विचार समर्पण कर सकते हैं इस टॉपिक पे। जरूर कर सकता हूँ। लेकिन कलयुग अभी हम 2024 में है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर दिखा रहा है, वेस्टर्न कैलेंडर। हमारा इंडियन कैलेंडर भी एक है, अभी 5108 चल रहा है। महाभारत होके 5000 ईयर्स हो गया, तब से कलयुग स्टार्ट हुआ है। ठीक है। कलयुग का राजा कौन है? शनि, शनिदेव है। सो शनि का प्रभाव कैसा रहता है? शनि मतलब झूठ, झूठ बोलना, धोखाबाजी, मारपीट, कोर्ट कचहरी, रोग ऋण शत्रु, ये सभी शनि का प्रभाव है। कलयुग में ये सभी ज्यादा होके अभी आपको नजर आ रहा है। 2020 में राहु का वर्ष आ गया, 2 और 2 4 बन गया, राहु बन गया, कोरोना आ गया, पैंडेमिक्स बन गया, बहुत लोग मर गए। ये सभी कलयुग का प्रारंभ का दिन है, जो भविष्योत्तर पुराण करके एक स्क्रिप्चर है।
ऑथेंटिक स्क्रिप्चर आफ्टर भगवत गीता, भविष्योत्तर पुराण है। उसमें क्या लिखा है, अभी एवरेज एज ऑफ द ह्यूमन बीइंग कलयुग में 60 अभी चल रहा है। 100 years बैक वो 80 था। 200 years बैक 100 रीच हो रहे थे लोग। कलयुग का एंडिंग सीजन में लोग के आयु 20 years बन जाएगा। 10 years को मैरिज हो जाएगा, 15 years को बच्चा हो जाएगा, 20th और 18th ईयर में मर जाएगा। ऐसा रहता है चित्रण। और पूरा पानी भर के रहेगा। अभी 70% पानी है अर्थ में, 95% पानी हो जाएगा। लैंड का वैल्यू सिर्फ 5% बचेगा। और कौन सत्य लोग हैं, सत्य विचार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सच्चा सेवक कौन है, वो लास्ट तक रहे। कलयुग का चित्रण ऐसा रहेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहन के हम घूमना पड़ेगा जब कलयुग एंड होगा। अभी कलयुग का आयु 4,32,000 ईयर्स, अभी सिर्फ 5,000 ईयर्स हुआ है। सो 4,27,000 ईयर्स अभी बचा है। यही कलयुग का चित्रण है। सो कौन सा ऐसा राशि का इंसान है जो अगर हमारा बिजनेस पार्टनर रहे देन बहुत लाभ होगा बिजनेस में? देखिए, बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर्स विर्गो और लियो बन सकते हैं, अक्वेरियस भी बन सकते हैं, और लिब्रा बन सकते हैं। ये सभी बहुत ऑनेस्ट रहते हैं क्योंकि उनका सैटर्न और सन बहुत फायदेमंद रहता है। और ये लोग झूठ बोलने से इनकार करने वाला लोग रहते हैं, मन से साफ रहते हैं, भगवान के ऊपर और भक्ति के ऊपर उनका बहुत प्रभाव रहता है, और अच्छे फैमिली के अच्छे संस्कार से पाला पैदा होते हैं ये लोग। इसलिए विर्गो, लिब्रा, लियो और सैजिटेरियस, ये सभी लोग बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं किसी को भी। क्या आप ऐसी कोई डेट बता सकते हैं अक्टूबर 2024 में जो बहुत ऑस्पिशियस है कोई न्यू बिजनेस शुरू करने के लिए? अक्टूबर 2024 में 6-9-28, ये 3 डेट बहुत ब्रह्मांड में बहुत अच्छा डेट्स है। इस 3 डेट में कोई भी बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र किसी भी मास में आप किसी भी बिजनेस स्टार्ट करो, क्लिक हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी और कार खरीदना चाहते हो तो अक्षय तृतीया करके एक रोज है, हमारा हिंदू धर्म कैलेंडर में आएगा। अक्षय तृतीया में कौन कार लाएगा? 11 बरस में एक 50 कार लेगा। 11 years में एक 3 से 5 मकान बनाता है ये तय है। बिजनेस में धोखों से बचने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा नुस्खा या उपाय है? नुस्खा टोना टोटके में बिजनेस का उपाय एक ही है। नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस में ब्लू लाइट आप लगा के रखिए। और आपका मल्टीपल बिजनेस पार्टनर है, सिंगल बिजनेस पार्टनर है, गाय को डेली खीर देते रहिए। आपका बिजनेस पार्टनर का मन ही ना आएगा आपको धोखा देने के लिए। ये सटीक उपाय है। और जटामांसी करके एक जड़ी बूटी है। प्रति साल में और प्रति माह में सोमवार के दिन कौन सा प्रदोष आता है, तभी आप शिवलिंग पे ये जटामांसी चढ़ाने से बिजनेस में धोखा भी नहीं आएगा। आप जल्द से जल्द करोड़पति भी बन जाएंगे और बरकत भी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आजकल एक मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ, वो पहले सिर्फ पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। हम्म, अचानक से ही लगा लीजिए कोविड के बाद वो इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुके हैं। हम्म, तो कई लोग कहते हैं कि वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है, हम्म, मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी सोल बेच दी है। हम्म। क्या इस टाइप का कुछ सच होता है कि मतलब आपको अपनी सोल बेचने से अचानक से बहुत फेम मिल जाएगी? मैं भी शैतान। मैं भी दिलजीत का बहुत गाना सुना है, और उसका पर्सनल हॉरोस्कोप भी मैंने स्टडी किया। दिलजीत पैदा हुआ है 6th
जनवरी 1984। सिक्स्थ यानी वीनस है, उसको फेमस होना ही है। और वो पैदा हुआ है सिद्ध योग में। सिद्ध योग मतलब सबके टॉप, वो भी उसका फायदा कर रहा है। और वो पैदा हुआ है शुक्रवार को, वो भी टॉप। और दिलजीत का पूरा ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर में स्टडी किया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब से 9 इयर्स तक दिलजीत को हराने वाला कोई नहीं रहता। वो इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी कुछ भी नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ ही एक चमत्कार है। कुछ ऐसा होता है कि कई सुपर ह्यूमन बीइंग्स अभी भी अर्थ पे हैं, कोई देवीय शक्तियां जो कई लोगों के अंदर है, कि वो आज भी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं सीक्रेटली। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मानते हैं? जी। मानते हैं ना? जी। मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूँ और सटीक निर्देशन देता हूँ, एक स्टोरी, ट्रू लाइफ स्टोरी देता हूँ। हमारे बॉर्डर में, कर्नाटक के बॉर्डर में एक महान व्यक्ति थे, 350 इयर्स बैक, महान संत थे। उनका जीव समाधि है। मैं अभी बताने वाला हूं वो कौन है करके। उनके पास केरला से 3 एस्ट्रोलॉजर्स आए थे और उस संत ने उनको कहा, मेरा कितना आयु है ये कैलकुलेट करके आप बताइए करके। तो फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर बोला, आपका आयु 100 इयर्स। सेकंड एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपका आयु 300। थर्ड ने बोला आपका आयु 700। स्वामी जी तीनों का हाँ कह के, मैं 100 इयर्स भौतिक शरीर में रहता हूँ, 300 इयर्स समाधि में रहता हूँ, 700 इयर्स मैं सबकॉन्शियस स्टेट में मेडिटेट करता रहता हूँ मेरा समाधि में करके बोले। वो स्वामी जी मंत्रालय के गुरु राघवेंद्र स्वामी अभी भी जिंदा है। मैं एक निर्देशन बताता हूँ, ये मद्रास गेजेट पेपर में आया था, बहुत लोगों को पता नहीं है। सर थॉमस मनरो करके एक इंग्लिश ऑफिसर आए थे, वो हमारा वाइसरॉय थे और मंत्रालय का रीजन का कलेक्टर थे। वो एक बार मंत्रालय को आते हैं और स्वामी जी को देखने का उनको इच्छा होता है। तभी उधर का पुरोहित उनको बोलेंगे, स्वामी जी अभी समाधिस्थ है, वो जिंदा नहीं है, वो टूम के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वो बोलता है फिर भी मैं देखना चाहता हूँ करके, वो जिद करता है। तभी अचानक उधर घंटिया सभी, बेल्स सभी रहता है, वो अचानक अपने आप मारने को स्टार्ट हो जाता है। सभी स्तंभीभूत होके सभी देखते रहते हैं। तभी एक मिराकल होता है, ये रिकॉर्डेड ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मंत्रालय का मूल वृंदावन स्वामी जी का 2 हिस्सों में ओपन हो जाएगा। सर थॉमस मनरो को सिर्फ राघवेंद्र स्वामी दर्शन देके, इंग्लिश में बात करके, उसको फल मंत्राक्षता और एक कोकोनट देके दोबारा वो समाधि में चले गए। उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। कौन? सर थॉमस मनरो। बाद में उधर का पीठाधिपति और पुरोहित लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ करके। वो बोलने लगता है, ए सेमी डिवाइन फॉर्म केम आउट ऑफ द टूम, स्पोक टू मी, गेव मी ऑल दिस थिंग्स एंड ही वैनिश्ड करके वो रोना पड़ता है। वो कब हुआ? आफ्टर 150 इयर्स ऑफ हिज समाधि ही गेव दर्शन। किसी भी रिलीजन में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है। मैं 100%, 1000% बता सकता हूँ, आज भी आफ्टर 354 इयर्स ऑफ समाधि, राघवेंद्र स्वामी स्टिल अलाइव इन द टूम। अभी भी लास्ट मंथ ही हुआ है, 354th सेंटिनरी सेलिब्रेशन हुआ उनका। मोर देन 1 करोड़ पीपल उधर जाके उनको प्रार्थना करके आए। सो दिस इज द फुल प्रूफ टू द होल वर्ल्ड, ही इज स्टिल अलाइव।
सुपर नेचुरल बीइंग्स है, रहेंगे, आएंगे भी। शिरडी साई बाबा को भी उदाहरण लीजिए, बहुत लोगों को उन्हें दर्शन दिया है। नीम करोली बाबा का लीजिए, अभी भी हो रहा है। लाइक वाइज सो मेनी सिद्धार्थ। मेरा लाइफ में भी पर्सनली एक इंसिडेंट हुआ है। मैं अगस्त्य जी को बहुत मान रहा था। अगस्त्य माउंटेन करके केरला पे है। जब भी मैं 16 बरस का था, मेरा गुरुजी के पास गया था। उधर हमको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुआ है। क्या आप इस एक्सपीरियंस को इस सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस को डिटेल के अंदर बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जब हम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, वो उस दिन मुहर्रम भी था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी था, उस दिन ईस्टर भी था। ऐसा एक दिन आया था। वो बहुत पावरफुल ऑरा, बहुत पावरफुल कॉन्शियस हमारे ऊपर था। जब हम केव के अंदर तपस्या कर रहे थे, एक अशरीर वाणी, अशरीर वाणी मतलब बॉडी नहीं दिखता, वॉइस सुनाई देता है। वो वॉइस हमको क्लियरली सुनाई दिया, और हमको एक रहस्य मंत्र भी अगस्त्य महामुनि ने दिया। ये मेरा लाइफ में हुआ एक बड़ा चमत्कार है। ऐसा बहुत कुछ बहुत लोगों के साथ भी हो सकता है। बिलीफ इज द मेन थिंग। इफ यू बिलीव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट। ये मेरा ट्रू लाइफ इंसिडेंट है। तो जैसे विजय तलापति आजकल पॉलिटिक्स के अंदर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन्हें कोई सक्सेस मिलेगी इस फील्ड के अंदर? देखिए, विजय तलपति एज एन एक्टर बहुत सक्सेसफुल हुए। उनका जन्म पत्री भी मैं स्टडी किया है। 22 जून 1974 में बॉर्न हुए थे। उनका ड्राइवर नंबर 4 है। 2 + 2 4 हो गया, राहु। उनका कंडक्टर भी 4 है। ड्राइवर और कंडक्टर राहु हो गया तो महागजकेसरी योग बोलते हैं। साउथ इंडिया में एक दिन ऐसा भी आएगा जब विजय दलपति तमिलनाडु में, अभी बोल रहा हूं ऑन कैमरा, चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, कोaliशन गवर्नमेंट भी रच सकता है, और बड़ा नेता बन सकता है, बड़ा रिफॉर्मर भी बन सकता है। 100% तय है, पॉलिटिक्स में उसका सक्सेस हो जाएगा। एक उपाय करना है, वो भी मैं बोल देता हूं उनको फ्रीली, वो करके देखें। श्रीशैलम करके एक मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग का मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी है उधर। उधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नल्लामल्ला फॉरेस्ट करके है, उधर इष्टकामेश्वरी करके एक देवता है। साक्षात शंकराचार्य ने उधर जाके पूजा की है उस देवता को। अगर उस देवता का दर्शन विजय दलपति करके आते हैं और राइट साइड हैंड को टच करके आते हैं, वो तय है 100% वो सीएम बन जाए। लिख के रखो। क्या बात है। तो जैसे कि आजकल शाहरुख खान की जो बेटी है सुहाना खान, वो भी आजकल मूवीज के अंदर आ रही है, बट लोग कह रहे हैं कि वो अपने पिता जितनी फेमस नहीं हो पाएंगी, उन्हें मतलब इतना लोगों का प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है वो बॉलीवुड में अपने पिता जैसी बहुत बड़ी स्टार बन पाएंगी या नहीं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, डोंट कंपेयर एनीवन, डोंट कन्फाइन एनीवन, थिंक कंस्ट्रक्टिवली। ये 3 C's अपनाइए। डोंट कन्फाइन, डोंट confront, and don't do any competition. अगर सुहाना खान का बात कर दिया जाए तो शी इज बॉर्न ऑन 4 मई 2000। उनका ड्राइवर नंबर 4 राहु, और उनका कंडक्टर नंबर हो गया 2 चंद्र। सो राहु और चंद्र का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, उनका जोडियाक जेमिनी बन जाता है। 101% लिख लीजिए। मैं और एक उपाय बताता हूँ सुहाना खान के लिए। अब अगर आपका चैनल से, पॉडकास्ट से, अगर सुपरस्टार शाहरुख खान, नहीं तो गौरी खान, नहीं तो सुहाना खान ही इसको देख लिया,
और ये उपाय कर लिया, लिख के रख लो, 40 इयर्स बॉलीवुड का भी नहीं, साउथ इंडिया का भी हीरोइन वो रूल करेगी। मैं ऑन द टेबल बोल रहा हूं दावे से। महुआ मधुका करके एक ऑयल है, सीक्रेटिव ऑयल, महुआ मधुका। ये ऑयल को शिवलिंग के ऊपर, शिवरात्रि के ऊपर वो चढ़ा दिया तो, और कालाहस्ती क्षेत्र में एक बार राहु केतु का शांति करके उधर दक्षिणा मूर्ति को अभिषेक कर दिया तो, लिख लो, 40 इयर्स सुहाना खान आप बॉलीवुड को रूल करेंगी, 100% सक्सेस तय। तो कई लोग कहते हैं कि जो हमारा बैंगलोर का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, वहां पे मतलब कोई भूत का संन्यास है, कुछ है वहां पे, हॉन्टेड एक्टिविटीज हैं। क्या आप इन चीजों में विश्वास रखते हैं? मैं भी ब्लॉग्स में पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, बहुत सारा पेपर्स में सभी पढ़ा है, फेसबुक में सभी। टर्मिनल 1 में कुछ वाइट साड़ी का गोश्त दिख रहा है, पायलट्स को भी दिखा है, सभी बोल रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बेंगलोर का हिस्ट्री के बारे में। बेंगलोर वॉज रूल्ड बाय टिप्पू सुल्तान ड्यूरिंग एंग्लो मैसूर वॉर। टिप्पू सुल्तान का फोर्ट अभी भी देवनहल्ली में है। देवनहल्ली में ही अभी केंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1700s में, तभी उधर मोर देन 1 लाख सोल्जर्स, मोर देन 1 लाख वुमेन वर बर्न्ड लाइव। बहुत बड़ा वॉर हुआ था। हैदर अली का भी हुआ था, टिप्पू सुल्तान का भी हुआ था। अभी भी देवनहल्ली में टिप्पू सुल्तान और हैदर अली का फोर्ट अभी भी है। आज भी आप जब एयरपोर्ट से आता है लेफ्ट साइड पे वो फोर्ट है। गोश्त रह सकते हैं। एक कॉइन में दोनों फेसेस रहते हैं, राइट? ब्राइटर फेस इज गॉड, डार्कर फेस इज डार्कर एनर्जी, दैट इज ओनली भूत प्रेत। हमारा अंदर भी क्या है, पंचभूत है, लेकिन स्पिरिट के बरके हैं। स्पिरिट मतलब प्राण है। प्राण 5 तरीके का प्राण रहता है, प्राण, समान, उदान, व्यान, ये सभी, राइट? जब भी इंसान सुसाइड कर लेता है, मानो भगवान की इच्छा नहीं है, तुम सुसाइड कर लिया, तय है वो भूत बन जाता है। ज्यादा किधर रहता है? इमली का पेड़ पे, बबूल का पेड़ के नीचे, इसलिए एल्डर्स बोलते हैं 12 o'clock आफ्टरनून में मत जाओ, अमावस्या पूर्णिमा में मत जाओ, इमली का पेड़ के नीचे भूत रहता है, आपके ऊपर चढ़ जाता है, सब बोलता है। भूत प्रेत है, उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत का भय है और उसको आप नजदीक लाना नहीं चाहते, कुछ भगाना चाहते हो, वो बहुत आपको भय है, मन में नेगेटिव एनर्जीज में भय है, डार्कनेस में भय है, फोबिया है, आप एक उपाय करो। अघोरी लोग आपको पता है, अघोरीस और नागा साधुस, है ना? एक अघोरी बनना है तो मिनिमम 100 भूतों का वश करना पड़ेगा। आपको पता है, एक अघोरी एवरी डे 12 o'clock नाइट के अंदर अंदर स्मशान वास होना ही है। जो अघोरी स्मशान के अंदर नहीं गया, बरियल ग्राउंड के अंदर नहीं गया, समझो वो अघोरी उस दिन मर गया। ठीक है? स्मशान का अधिदेवता कौन है? हरिश्चंद्र है, साक्षात ईश्वर है। ये अघोरिया क्या करते हैं? वो बरियल ग्राउंड में चिता भस्म रहता है, वो डाल के रहते हैं अपना शरीर पे। अघोरी का फर्स्ट टो रहता है, उसको आप चरण स्पर्श करके उनको थोड़ा पैसा देके, ठीक है, उनके हाथ से भस्म लेकर आओ तुम। ट्यूसडेज, अमावस्या, भरणी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, नहीं तो पौर्णमी को वो भस्म तुम्हारा साथ रखो। मैं बोलता हूँ भूत प्रेत टोना टोटका जिन कुछ भी काम नहीं करेगा तेरे सामने।
इतना पावर अघोरी साधुस को, नागा साधुस को होता है। ये सटीक उपाय है, ये ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी को अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल बनना है, बहुत तो उसका सक्सेसफुल, कोई उपाय बता दीजिए। बहुत सक्सेसफुल उपाय एक है, अगर आप भी कर लेते तो बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। बहुत सक्सेसफुल लोग भी इसको आजमाए। अभी क्या करना, आपके घर के सामने नहीं तो बाजू में आपके कॉलोनी में कोई भी शिवलिंग का टेम्पल रहता है। सैफरन पता है ना आपको, केसरी, मिनिमम 2 किलोस लेके 33 मंडेज मिनिमम, होता नहीं उतने बार, एटलीस्ट 5 मंडेज, वो भी होता नहीं, एक सोम प्रदोष में, नहीं तो एक कृष्ण प्रदोष में, नहीं तो एक शुक्ल प्रदोष में, नहीं तो एक शनि प्रदोष में 2 किलोस ऑफ सैफरन, ओरिजिनल सैफरन रहना चाहिए। आप चढ़ा के ये मंत्र बोल के आ गया ना, आपको सक्सेस मिलना तय। वो मंत्र आप लिख लीजिए, इंटा वेंटा जंटा कंटाय नमः। ये मंत्र बोलने से, ये सिद्ध कुंजी का मंत्र है, ये सिद्ध अघोरी मंत्र है, सिद्ध नागा का मंत्र है, बहुत सीक्रेटिव मंत्र है, कोई भी बोलता नहीं। इंटा वेंटा जंटा कंटाय नमः, ये बोलने से और आप सैफरन देने से बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ। वास्तु खराब है, वास्तु ठीक हो जाएगा। एलिमेंट से एलिमेंट्स क्यूर हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा, हॉस्पिटल विजिट्स कम हो जाएगा, लग्जरी चाहिए लग्जरी मिलेगा, करियर ग्रोथ, जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मैरिज, प्रोजेनी इश्यूज, इम्पोर्टेंसी, फियर ऑफ डेथ, सभी निकल जाएंगे, सभी ग्रह का शांति हो जाएगा। ये करना जरूरी। जैसे कि कई बच्चों का, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब वो मेहनत करते हैं, कई बार नंबर नहीं आते इतने, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ उपाय बता दीजिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो सरस्वती पुराण में लिखा है। ये आप करने से कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं तो भी वो पढ़ने लगता है, मार्क्स स्कोर करने लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट ये है, बच्चे को जब पढ़ाते हो साउथ वेस्ट कॉर्नर नहीं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनका स्टडी रूम बनाओ, हॉल में बिठा के आप उनको ट्यूशंस लेना नहीं तो स्टडीज करना मना कर दो। बेड के ऊपर भी वो स्टडी नहीं करना है, ग्राउंड को टच होके करना है। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, छोटा सा एक 8 इंचेस का, 8 सेंटीमीटर्स का तुलसी का काढ़ी लीजिए, तुलसी स्टिक, ड्राई भी होता है, ये भी होता है, ग्रीन स्टिक भी होता है। उसको आप शहद में डिप करके, एक बीजाक्षर बोलता हूँ, वो डेली 11 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे करना पड़ेगा। जब ये कर रहे हैं, सरस्वती माता को ब्रह्म कमल चढ़ाना पड़ेगा। ब्रह्म कमल साक्षात सरस्वती माता है। टंग के ऊपर उनका पेरेंट्स, नहीं तो भाई बहन कौन भी हो, ये स्टिक को, तुलसी स्टिक को शहद में डिप करके आइम करके, एक बीजाक्षर है AIM, आइम, वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बच्चा 0 मार्क्स भी ले रहा है, पूरा पिकअप हो जाएगा 3 मंथ्स में। क्या आपके पास रिश्ते या रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी उपाय है? जरूर है। बताइए। रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करने के लिए दो सटीक उपाय मैं बोलता हूँ। एक मॉडर्न उपाय, नॉर्थ वॉल में मंदरिन डक्स करके आता है, चाइनीज मंदरिन डक्स, उसका फोटो चिपका दीजिए, आपका रिलेशनशिप्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और अरवाना फिश करके एक गोल्डन फिश आता है, वो घर में पालना पोसना स्टार्ट कीजिए, रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाएगा। रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ हॉरोस्कोप्स का प्रॉब्लम है,
तो आप एक उपाय कीजिए। बे लीफ आता है, बे लीफ के ऊपर रेड कलर पेन में दोनों पार्टनर्स का नेम लिख लीजिए। एक कांच का ग्लास या डिब्बा ले लीजिए, पूरा शहद भर दीजिए उसमें, थोड़ा सैफरन डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सिनेमन पाउडर डाल दीजिए, सिनेमन स्टिक रख दीजिए, इसको डिप करके येलो और रेड थ्रेड में बांध के, रेड कलर या येलो कलर क्लॉथ में आप टाई करके साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख लीजिए। आपका रिलेशनशिप्स 100% ठीक हो जाता है। और भी एक सटीक उपाय है रिलेशनशिप्स ठीक करने के लिए। पफ्ड राइस आता है ना, पोहा, पोहा के अंदर थोड़ा आंवला मिक्स कर दीजिए, आंवले का रस, आंवले का रस मिक्स करके ग्रेप जूस को मिक्स कर, डेट्स सिरप को मिक्स कर दीजिए, ये तीनों को शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, आपका रिलेशनशिप पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे कि आजकल आपने देखा है इंडिया के अंदर बहुत वुमेन को असॉल्ट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। रिसेंटली कोलकाता से एक बहुत बड़ा केस बन चुका है। आपके पास कोई ऐसा नुस्खा या उपाय है जिससे वुमेन अपने आप को सेफ गार्ड कर सके इविल आई से, किसी की बुरी नजर से? एक बहुत अच्छा उपाय है, सटीक उपाय है, इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मैं बताता हूँ सभी, क्योंकि ये सभी वर्क करना है लोगों को। करवीरा पुष्प करके एक पुष्प है, फ्लावर, करवीरा फ्लावर्स, उसको अंग्रेजी में ब्लैक रोज भी बोलते हैं। ये करवीरा पुष्प को आप हासिल करके शिवलिंग के ऊपर फ्राइडे शाम को चढ़ाने से, नहीं तो दुर्गा माता का चरण में चढ़ाने से, नहीं तो लक्ष्मी माता का चरण में चढ़ाने से रेप्स नहीं होंगे, बुरा हाल नहीं आएगा, वुमेन्स को बुरा वक्त नहीं आएगा, यूट्रस प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा उनका, मिसकैरेजेस भी ठीक हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा ये एक उपाय करने से, क्योंकि करवीरा पुष्प साक्षात दुर्गा लक्ष्मी माता बोलते हैं। ये कोई लड़की या औरत या छोटी बच्ची दुर्गा माता लक्ष्मी या शिवलिंग पे चढ़ा दिया तो उसी दिन उनको ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलना तय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for calling me on this show. I really enjoyed speaking with Nazneen and sharing few insights what I have learned from past experiences and from my gurus. One thing I want to tell all the viewers, that believe in yourself, because only you can manifest your dreams, and always have respect towards elders, serve animals and plant trees, and save water because water is divine. Thank you. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। टिल देन गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए। स्टे पॉजिटिव एंड कीप मैनिफेस्टिंग।